डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है, इट इज़ यूजफुल फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड सिलेबस, फिर बिलोंगिंग टू एनी व्हाट आई वुड से स्टेट ऑफ इंडिया। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। स्पेशली ये टॉपिक है आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे, एनडी के एग्जाम में, everywhere you will find this topic, and for CBSE it's very compulsory. Yes, so once again I repeat myself, this topic is useful for CBSE students, state board syllabus, plus competitive exam arranged by government. So for everyone this topic is compulsory and confusing, but don't worry, when I am here, why to fear? So here, let me introduce myself. I am PK Jadhav from Nanded, Maharashtra. वीडियो का टाइटल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोलते हैं। चिंता मत करो डियर स्टूडेंट्स, all your doubts will be clear. Yes, it's my guarantee, it's my assurance to you. So let me clear subject verb agreement. Now we'll move to the next one. They are the rules. आपको तो मालूम है कि एक्चुअली सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय प्लेज और द बॉय प्लेज, वेराइज द बॉयज प्ले। अब दी बॉयज के कारण क्या आना चाहिए? प्ले। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, दी बॉय प्लेज, दी बॉयज प्ले, सो वर्ब डांसेस, मूव्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ओके, देर आर सर्टन रूल्स। एक बार रूल, वंस यू फॉलो द रूल्स, बिलीव मी, देयर विल बी नो टेंशन। विल टेक रूल्स आल्सो एंड एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो रूल नंबर 1, it's very general that if subject is plural, verb should be plural, and if subject is singular, verb should be singular. जो मैंने कहा था, hello, the boy is lucky, the boys are lucky, the girl is clever, the girls are clever. Okay, according to subject, verb dances or verb moves or verb is used, and that's why it is called as, see, it is very general that if subject is plural, verb should be plural, and if the subject is singular, the concerned verb should be singular respecting the form of subject. मैंने वही बोला, singular है कि plural है? He dances, they dance. So according to that one. In short, there should be perfect concord or relations or agreement between subject and verb. दोनों में perfect होना चाहिए, और if you use wrong, it will be called as wrong English. The child or the boy goes to school. The boys go to school. Yes, and wrong English, wrong impression. Okay, so rule number, here are some important rules regarding subject or agreement which will clear your doubts. Okay, अब देखो रूल नंबर 1, a verb should agree with subject, its number and person. Generally the verb agree with the number. Verb आता है singular, number, number, singular, plural, etc. They are called as number. I repeat the point with a proper tagline. Just a minute. Rule number 1. Okay. So, a verb should agree with its number. Number means singular, plural, and person. Generally, the verb agree with the number. अब देखो, the many boys are there. The progress of the boys is not satisfactory. Actually, is refers to main subject. Boys are there, but progress is single. That's why is. अब the result of all the classes is good. Classes are many, but result is singular. That's why is. अगर plural था तो क्या आना चाहिए? Are. Okay, so that's why there is a concord, there is agreement between subject and verb. Clear all of you? Yes. Next one, rule number 2. Very simple to mention. If subject is singular, the concerned verb should be singular, and in the case of plural subject, the verb must be plural. अगर subject singular है तो verb singular रहेगा, and very simple, subject plural है तो verb भी क्या रहेगा? Plural रहेगा. Right? One more example. The student is waiting. Of course, student single है, whereas students ज्यादा है, इसलिए क्या आ गया? आर। आपने देखे होंगे रेलवे के हर एग्जाम में, एनडीए के हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दिस टॉपिक ट्रबल द स्टूडेंट. You know, this topic troubles. Yes, this is also subject verb agreement. Okay, yes. So single is, plural are. Verb dances according to subject. Rule number 3, I will move upside. Rule number 3, now get ready.
यस। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइन बाय एंड, अगर दो नाउन, आप देखो राम एंड श्याम दो नाउन है, ज्वाइन बाय एंड, द वर्ब शुड बी प्लूरल। राम श्याम दोनों ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इट शुड बी आर। क्लियर? यस। राम इज लकी बट राम एंड श्याम आर लकी। राम इज लकी बट राम एंड श्याम आर लकी। नेक्स्ट वन, मैथ्स एंड साइंस ऑलवेज हेल्प। मैथ्स अगर आता था तो हेल्प आता था, सिर्फ मैथ्स, बट मैथ्स एंड साइंस दोनों है, इसलिए क्या आ गया? हेल्प। वर्ब डांसेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब डांसेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 4, इफ टू सिंगुलर नाउन्स डिनोट सिंगल कंसेप्ट। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बच्चे फ्लॉप होते हैं। अगर दोनों, आप देखो ना, राम एंड श्याम प्लूरल आर देयर, बट इफ टू सिंगुलर नाउन, अगर दो सिंगुलर नाउन्स एक ही कंसेप्ट को डिनोट करता है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब ये पॉइंट तभी समझ में आ जाएगा व्हेन आई एक्सप्लेन द एग्जांपल, व्हेन आई एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ओके, अब देखो रूल क्या है? इफ टू सिंगुलर नाउन्स डिनोट सिंगल आइडिया, सिंगल कंसेप्ट, द वर्ब मस्ट बी यस। आप देखो, राइस एंड दाल इज माई फेवरेट। राइस एंड दाल एक ही कंसेप्ट है, दाल भात, दाल भात एक ही कंसेप्ट है, राइस एंड दाल एक ही कंसेप्ट है, इसलिए इज। वही बात ब्रेड एंड बटर एक ही कंसेप्ट है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। राइज एंड फॉल एक ही कंसेप्ट है, पॉइंट टू नोट, राइज एंड फॉल, ब्रेड एंड बटर, राइज, पैंट एंड शर्ट इज अ परफेक्ट ड्रेस, पैंट एंड शर्ट एक ही है। इडली सांबर एक ही है, इडली एंड सांबर इज रेडी फॉर यू, इडली एंड सांबर इज माय ब्रेकफास्ट, इडली सांबर एक ही कंसेप्ट है, एक ही आइडिया है, दैट्स वाई इज। नेक्स्ट वन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इडली एंड सांबर इज माय, क्योंकि कंसेप्ट एक है ना। अब आपको रूल समझ आएगा। इफ टू सिंगुलर नाउन्स डिनोट सिंगल आइडिया, सिंगल कंसेप्ट, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। आप समझे? एग्जाम्पल के बाद ही पॉइंट समझ में आता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो मैं राइस एंड दाल इज क्या? इज। ब्रेड एंड बटर एक ही कंसेप्ट है, इज। राइस एंड फॉल एक ही कंसेप्ट है, इज। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इडली एंड सांबर इज। हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी एक ही कंसेप्ट है, इसलिए वॉज, दोनों अलग नहीं है, एक ही कंसेप्ट है। यस। इडली सांबर एक कंसेप्ट है, शर्ट एंड पैंट एक ही कंसेप्ट है, दाल भात एक ही कंसेप्ट है, इसलिए उस केस में जब दो नाउन है लेकिन कंसेप्ट एक है, इसलिए क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ बातें एग्जाम्पल के बाद समझ में आती है। रूल नंबर 5, बाय मिस्टेक दे हैव रिटन। नाउ रूल नंबर 4B इसको बोलेंगे हम, इट विल इजी फॉर अस। 4B, अब देखो, इन केस ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, कंसर्न वर्ब शुड बी नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में, नॉट ओनली बट ऑल्सो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट याद रखो, आपके हर एग्जाम में, गवर्नमेंट के हर एग्जाम में, वो बाकी एमपीसी रहने दो, बाकी एसटीआर रहने दो, बाकी कुछ भी एग्जाम रहने दो, यू नो ऑल एग्जाम, दिस इज वेरी मस्ट। नॉट ओनली महाराष्ट्र, हर स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के एग्जाम है, ये टॉपिक कंपलसरी है और कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे बहुत से बच्चे दे कमिट मिस्टेक, चिंता मत करो। अब देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, इट इज कॉल्ड नीदर नॉर ऑल्सो, एंड ईदर और। याद रखो बच्चे लोग, इस केस में आपका वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, राम एंड श्याम इज एब्सेंट, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। अब बट ऑल्सो श्याम, इज आया श्याम के लिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट। नॉट ओनली बट ऑल्सो में, नाइदर नॉर में, आइदर और में वर्ब आता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आते थे तो क्या आता था? आर, क्योंकि वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। आई रिपीट वंस अगेन, जो कंफ्यूज हो रहे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और के केस में वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके बाजू में कौन है उसके अनुसार आता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। आप देखो, बट ऑल्सो श्याम, श्याम रहने के कारण क्या आ गया? इज। वही बात, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, एंड देखो, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, क्या आना चाहिए? आर। करेक्ट। नाइदर राम नॉर आई, अभी आई एम किसी कारण आ गया? नियरेस्ट सब्जेक्ट। नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर नॉर में वर्ब आता है नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके बाजू में कौन है? बाजू में कौन है? एम के बाजू में कौन है? आई, इसलिए क्या आ गया? यस। अब श्याम रहने के कारण क्या आ गया? इज। अगर यहाँ पे बट ऑल्सो फ्रेंड्स रहते थे तो क्या आता था? आर, दैट इज कॉल्ड नियरेस्ट सब्जेक्ट। आइदर राहुल और माई फ्रेंड्स,
अब देखो राहुल सिंगल है, इज आना चाहिए, नहीं, आर क्यों आ गया? नियरेस्ट सब्जेक्ट। आर के बाजू में नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? वर्ब के बाजू में जो नियरेस्ट है उस कारण। वही बात, आइदर राहुल और श्याम इज रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल, श्याम के कारण इज आ सकता है, लेकिन आर क्यों आ गया है? वर्ब के बाजू में जो नियर है उसके अनुसार आता है। सिंगल है तो इज, प्लूरल है तो आर। डू यू अंडरस्टैंड? नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर के केस में वर्ब आता है, उसके बाजू में सब्जेक्ट कौन है, नियर कौन है, उसके अनुसार। सिंगल है तो इज, प्लूरल है तो आर, सिंगल है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। नेक्स्ट, अब रूल नंबर 5, the following subject or words like each, every, either, neither, everyone, each, someone, no one, anyone, anybody, many नहीं, many they follow singular। ये सब सिंगल लेते हैं, इज नहीं तो वॉज, इज इज सिंगल, वॉज ऑल्सो सिंगल, आर प्लूरल है, वर प्लूरल है। करेक्ट? अब देखो, आई रिपीट द रूल, द फॉलोइंग सब्जेक्ट और वर्ड्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर और आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, मेनी, इसके बाद हमेशा सिंगल आना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। आप देखो एग्जांपल्स आर देयर, एवरीवन इज लकी, एवरीवन इज, नो वन इज, मेनी अ बॉय इज, मेनी बॉयज नहीं, मेनी अ बॉय। पॉइंट टू मिनट, आइदर ऑफ देम, आइदर सिंगल, क्योंकि उनमें से आइदर में सिंगल, नाइदर ऑफ देम वाज रिजेक्टेड, देम आर देयर बट नाइदर में सिंगल, आइदर में सिंगल, समवन इज सिंगल, नो वन इज सिंगल, दैट्स व्हाई इज, each student is single है, every student is single है, every student and teacher was consulted, because every means single, every is single रहता है, every school and college has to follow, every school and college single concept है। Dear student, do you understand? Very simple, each, every, this refer one, someone, no one refer to one, either, neither और either, neither refer to one। इसके लिए इसके बाद आने वाले वर्ब हमेशा सिंगल आते हैं। क्या आते हैं? सिंगल आते हैं। आई रिपीट, दे कम इन सिंगल। क्लियर? सो दैट्स अ ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट वन, क्लियर आउट्स? आफ्टर दैट, रूल नंबर 6, द वर्ड्स लाइक अ फ्यू, मेनी, सुन रहे ना, सेवरल, बोथ, ऑलवेज टेक प्लूरल। याद रखो बच्चों लोग, जस्ट आई विल हाईलाइट। हाँ, अ फ्यू, मेनी, सेवरल, इसके बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल, आर नहीं तो वर आएगा, क्योंकि दे रेफर फॉर प्लूरल। मेनी स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर है, आर, फ्यू स्टूडेंट्स वर, अ फ्यू रहने दो, फ्यू रहने दो, अ फ्यू अटेंड, और मैंने प्रीवियस स्टूडियो में बोला है कि फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क है, लिटिल एंड अ लिटिल में क्या फर्क है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियोस। ओके, नेक्स्ट वन, बोथ राम एंड श्याम दोनों हैं इसलिए आर, सेवरल ऑफिसेस वर, इट इज अकॉर्डिंग टू दैट वन। जैसा रिचार्ज वैसा टॉक टाइम, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। क्लियर? यस, आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट वन, अब देखो राम और श्याम, अब देखो राम और श्याम इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड, राम और दोनों में से एक, राम और श्याम। यस, अगर वही बात रहती राम एंड श्याम तो क्या रहता था? आर। जैसा रिचार्ज वैसा टॉक टाइम, आई रिपीट, जैसा रिचार्ज वैसा टॉक टाइम। करेक्ट? आप देखो ना, राम और श्याम इज गोइंग, बट राम एंड श्याम आर गोइंग। जॉन और मेरी इज द विनर, जॉन और मेरी उनमें से एक, वही बात, जॉन एंड मेरी क्या रहता था? आर। करेक्ट? दैट्स अ ब्यूटी। क्लियर? कितने हो गए रूल्स? 7 आई थिंक सो। यस, नाउ वी आर मूविंग टू रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, अब सुनो बेटा। हाँ, इन केस ऑफ एज वेल एज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज के केस में बच्चों लोग, एज वेल एज के केस में वर्ब आता है पहले सब्जेक्ट के अनुसार। नैन्सी एज वेल एज हर फ्रेंड इज कॉल्ड, नैन्सी सिंगल है इसलिए इज। याद रखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर में वर्ब आता है नियरेस्ट सब्जेक्ट कारण, लेकिन एज वेल एज में वर्ब आता है फर्स्ट सब्जेक्ट कारण। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। यस, सिर्फ इट हैपेंस इन एज वेल एज, आई रिपीट, एज वेल एज। ओके, नेक्स्ट वन, नैन्सीज फ्रेंड्स और हर मदर आर इन्फॉर्म। अब देखो एज वेल एज के केस में her mother, actually what happened here, there is some it should be used as well as, by mistake there as well as, और नहीं, और की जरूरत नहीं है। अब देखो मदर तो सिंगल है लेकिन इज आना चाहिए, नहीं, रूल क्या है? एज वेल एज के केस में वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट।
Correct? Verb agree with the first subject. Clear? I hope you understand. Okay. Next one. In case of more than plus singular, more than के बाद अगर singular आता है, more than one boy is present, verb should be singular. Point to be noted. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है बच्चों की. More than one boy is present, more than one girl is present, more than one boy is pass is called. जो भी है more than plus single और subject आया तो verb should be singular. More than one teacher is invited. Correct? Yes. More than one teacher is needed. स्ट्रक्चर इंग्लिश का, ये मेरे अपने घर की प्रॉपर्टी नहीं है. मोर देन प्लस सिंगुलर स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट शुड बी फॉलोड सिंगुलर. ये हो गया आपका रूल नंबर 9. नेक्स्ट रूल नंबर 10. रूल नंबर 10. अब देखो, वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑलवेज टेक्स नीड्स सिंगुलर वर्ब. वन ऑफ द जब आता है, आई रिपीट, वन ऑफ द जब आता है ना, तो वर्ब हमेशा सिंगल आता है, क्योंकि वन ऑफ देम मींस उनमें से एक. एक्चुअली वन ऑफ द का फुल फॉर्म क्या है? वन ऑफ देम, उनमें से एक, इसलिए वो क्या आता है? सिंगल आता है. इज नहीं तो वॉज, क्योंकि उनमें से एक. आप देखो ना, वन ऑफ द बॉयज हैज, वन ऑफ सिटीज वॉज. सिटीज ज्यादा है लेकिन उनमें से एक, दैट्स व्हाई वॉज. तो रूल क्या है? वन ऑफ द स्ट्रक्चर में वर्ब एग्री विद द verb is always singular. One of the students is, one of the boys is, boys are many लेकिन उनमें से एक, that's why one of the boys, one of the students, one of the teachers, that's why singular. Okay? Yes. Next one. None is used for singular as plural. Point to be noted. None single के लिए भी यूज करते and plural के लिए यूज करते. Yes, none. No one नहीं, हाँ, none. None used for singular as well as plural. That's why the verb should be according to sense. बोलने वाला एक आदमी के बारे में बोल रहा है कि ज्यादा आदमी के बारे में. None is ready, none are ready. Both are right. It depends on speaker. Speaker किसके बारे में बोल रहा है? None is ready, none are ready. None is ready, single. None are ready. Clear? So account that. Next, rule number 12. Rule number 12. अब देखो बच्चे लोग, रूल नंबर 12. हाँ, द वर्ड्स लाइक पीपल, रिपीट, पीपल प्लूरल, रेड पेन इज विजिबल, पीपल प्लूरल, पोल्ट्री, कैटल, पुलिस, वर्मिन, दे आर यूज फॉर प्लूरल सेंस. दैट्स व्हाई इनके वर्ब हमेशा क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए. आर नहीं तो वर्ब चाहिए, प्लूरल चाहिए. यस, रिपीट, पीपल आर लकी, पोल्ट्री आर देयर, cattle are there, police are called, vermin are called. No, not called. Yes, vermin are, killed. Vermin insects. The people are ready, the cattle are grazing, the police are ready, the vermin make miss. Yes. अब देखो, very simple. He asks the doubt. वर्ब में यूज करे तो ये होगा सिंगुलर, and they ask a doubt. इसे बोलते प्लूरल. So here ask singular and ask plural. Okay? Next one. Rule number 13. Don't worry, topic will be clear. थोड़ा नहीं, ये topic बहुत confusing है. Until unless you go through the rules, believe me, this topic is very confusing for you. That's why we are taking all the rules. थोड़ा सा have patience. Once rules are clear or once you understand rule, you will be happy. Yes, especially competitive exam के students, याद रखो, ये compulsory question है और यहाँ पे बहुत से बच्चे flop होते हैं. Yes, go through rules. Rules के बाद I will make one more video on only examples. रूल्स का एक वीडियो अलग रहेगा और एग्जांपल्स का अलग रहेगा. ओके? यस. रूल नंबर 13. 100 रुपीज, 100 किलोमीटर, 2 वीक्स, 50 माइल, ऐसे एक्सप्रेशन अमाउंट दिखाते हैं, सिंगल अमाउंट दिखाते हैं. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज टेक सिंगुलर. अब देखो ना, 100 एग्जांपल, 100 रुपीज एक्चुअली अमाउंट है, इसलिए क्या आना चाहिए इसके पीछे? पीछे मीन्स सामने इज. 100 रुपीज है बट दैट इज अमाउंट. यस. 100 किलोमीटर तो है लेकिन दैट इज डिस्टेंस. 2 वीक्स का क्या है? ड्यूरेशन है, इसलिए इज. 50 माइल्स का क्या है? डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई हैज. करेक्ट? 100 रुपीज आर देयर बट दैट इज अमाउंट, सिंगल है, इज. 100 किलोमीटर्स आर देयर बट दैट इज डिस्टेंस, यस, इज. करेक्ट? दे शो डिस्टेंस और अमाउंट. दैट्स व्हाई repeat the rule. 100 rupees, 100 kilometer, 2 weeks, 50 miles, such expression show single amount. That's why the verb is always singular. Yes, 100 rupees is, 100 kilometer is, 2 weeks का duration है, इसलिए is है 2 weeks, plural, लेकिन वो duration का टाइम है.
50 miles ए भी क्या है, डिस्टेंस है, दैट्स वाई हैज, सिंगल. करेक्ट. वन मोर एग्जांपल. रूल नंबर 14. In case of good deal, a great deal, it should be followed by uncountable. A good deal of, a great deal of. For example, a good deal of time is a good deal of, a great deal of. Actually, it is followed by uncountable. You know, if they followed by uncountable noun, the verb must be singular. अब देखो ना, a good deal of time, it's uncountable. Time is uncountable. A great deal of hard work is, so a good deal of uncountable, a great deal of uncountable. Always take single. A great deal of amount, right? A great deal of hard work, amount नहीं है, a great deal of hard work. Hard work क्या है, uncountable है. A good deal of time, uncountable. That's why it should be singular. Clear? Next one. Rule number 15. अब देखो. Now last 3-4 rules are remain. Rule number 15. The following words take singular verb. आप नीचे जो uncountable words है वो single लेंगे. Water, uncountable is. All the oil, uncountable was. Most of the milk, uncountable is. None of the chemical is. Uncountable जब रहेंगे noun, they always take single. Uncountable. Water, uncountable है. हम ये नहीं बोलते एक water, दो water, तीन water, ऐसे नहीं बोलते. Water, material noun, पदार्थवाचक नाम. They always take singular verb, right? A great amount of water is needed, right? Some water is needed. All the oil was wasted. Most of the milk is finished. None of the chemical is useful. Yes, because they are material noun, and that's why material noun uncountable. That's why they take is. अब देखो, the words like some, all, most, none, some, all, most, none, they always take plural, referring to countable. Some of the students are lucky, have passed the exam. All the people are using. Most of them are my friends. None of the teachers are happy, because they refer some, all, most, none. They refer to plural. इसलिए verb भी क्या आना चाहिए, plural आना चाहिए. Correct? Simple rule है, आपको याद रखना पड़ेगा. Next, rule number 17. Maybe last or 18, 19, 20 rules are there. Yes. So rule number 18 now. 16 finish, I think so. Yes. 17 now. Sorry. 17. तैयार है? 17 visible? Good. Just a minute. One or plural noun structure adopts plural verb. अब देखो ये एग्जाम्पल के बाद समझाता है. One or more students have joined the singing. One or more students. One or plural noun. One. One or two teachers are called. One or plural noun. Always take plural verb. One or two boys are called. One or three teachers are invited. Correct? So a structure है, a rule है. Yes. Next one. Now know the difference. अब ये बहुत interesting है. The poet and the philosopher is here. The poet and the philosopher are here. दोनों में फर्क है. जब मैं बोलता हूं the poet and philosopher is here means I am talking about a single person. And वही बात the poet and philosopher are here means I am talking about two people. Point to be noted. Yes. For example, the statesman and the philosopher is invited. We are talking about single. Whereas the statesman and the philosopher are invited. Here how many people are there? Two. And the poet and philosopher use for only single person. That's why is. एक ही आदमी के लिए दो यूज किए इसलिए is. लेकिन दो आदमी है इसलिए are. मीन्स पोएट भी है और फिलोसोफर भी है एक आदमी. एंड पोएट एंड फिलोसोफर आर हियर मीन्स पोएट भी अलग है और फिलोसोफर दो आदमी है. दैट्स व्हाई आर. करेक्ट? यस. नेक्स्ट वन. रूल नंबर 19. आप सुनेंगे. रूल नंबर 19. जस्ट अ मिनट. So this is the last screen of your video. हाँ आप देखो. A lot of structure followed by countable adopt plural form. A lot of जब यूज करते ना it always कभी कभी कुछ रूल एग्जाम्पल के बाद ही मालूम होते हैं. अगर आप प्लेन रूल पढ़ेंगे we don't understand. लेकिन एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल समझने के बाद अगर रूल पढ़े
देन वी अंडरस्टैंड। आप देखो ना, वेरी इंटरेस्टिंग। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर absent टुडे, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर absent, अ लॉट ऑफ मिल्क इज वेस्टेड। अब देखो, अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर फॉलोड बाय काउंटेबल टेक्स प्लूरल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेबल है इसलिए प्लूरल, एंड इट इज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल इट टेक्स सिंगुलर। अब मिल्क अनकाउंटेबल है तो मैंने क्या लिया, लॉट ऑफ सेम है, लेकिन अ लॉट ऑफ के बाद काउंटेबल है इसलिए क्या लिखा मैंने, आर, एंड अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है दैट्स वाई इज। क्लियर? अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉल्ड, lot of people countable are called, a lot of oil is needed, lot of oil uncountable that's why is। clear? yes, कोई कभी कभी क्या होता है एग्जाम्पल के बाद रूल पढ़ते जाओ, so we get proper understanding। okay, yes, next one 20 last। the words like trouser, ये बहुत इंपॉर्टेंट, trouser, spectacle, glasses, goggles, shorts, binoculars are always used in plural form। कभी याद रखो spectacles बोलते हैं हम इसलिए आर आना चाहिए, trousers हमेशा पैर में आते हैं ना, वो spectacle दो पैर में आते हैं, ट्राउजर पैर में आते हैं इसलिए उसको आर आना चाहिए। देखो ना, the trousers are, the spectacles are, the goggles of Ray-Ban are, goggles दो रहते हैं ना, the shorts are common are, the binocular binocular दूरबीन yes are। तो इसके बाद याद रखो spectacles, even the scissors also, scissors कैंची, yes they are always used in plural form। correct? spectacles, binoculars, scissors, trousers, they're always, one more क्या रह गया और, trousers, spectacle, glasses, goggles, shorts, binoculars and scissors they are used in plural। उसके सामने जो वर्ब आता है ना वो प्लूरल आना चाहिए। क्लियर? ऑनेस्ट my dear students, doubts are clear? so this is the postmortem of subject or agreement। लेकिन इतना काफी नहीं है, ये होने के बाद आपको एग्जाम्पल के बाद ही यू विल बी परफेक्ट। तो ये तो वीडियो हो गया सिर्फ एक्सप्लेनेशन का, रूल्स का, गाइडलाइंस का, लेकिन एग्जाम्पल के बाद यू विल गेट गुड कमांड। तो स्पेशली बेस्ड ऑन दैट I will make a wonderful video on examples, so all your doubts will be clear। is it okay all of you? so don't worry, all doubts will be clear, all this theory। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रिपेयर एग्जांपल ऑन दैट। ये तो गए रूल्स, एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू गेट द अपडेट्स ऑफ आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत ले रहा हूँ तो प्लीज़ कंजूसी मत करो सब्सक्राइब करने के लिए, एंड शेयर एंड लाइक तो आपको मालूम है रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज, बट आई बिलीव इन यू। कुछ भी डाउट्स तो प्लीज सेंड इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी ऑलवेज देयर। सो लास्ट टैगलाइन, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फियर, हियर पीके जादव टेक्स योर काइंड लीव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव ग्रेट टाइम, बाय बाय।